A very good morning to everyone. In the last lecture, we had started with the new chapter, the first chapter in this subject, and it is internal reconstruction. Just to brief it up, just to summarize, internal reconstruction is a situation which a company faces when it incurs losses for few years. The company, that time all the stakeholders of the company decide to make a sacrifice, because if they do not make a sacrifice, there will be only one option left, and that to close the company. And if the company close down, anyone will not get like most of them will not get anything. So what the stakeholders means the ones who have interest in some or the other interest in the company, with the help of the law, with the help of the judiciary, they decide to make a sacrifice so that the losses which have been accumulated in the company's balance sheet can be washed off, can be written off. For that purpose, we undergo internal reconstruction. This is a condition, this is a situation which arises only once in a lifetime of a company, because each and every time the stakeholders will not get ready to make a sacrifice. This chance will be given to a company only once, that most of them are ready to make a sacrifice on with their claims. They are ready to reduce their claims to get the losses written off. So this will not happen all the time. This happens only once in the lifetime of a company, and we prepare a special account in this chapter known as the capital reduction account, which is a nominal account. Nominal account, and the rule of nominal account is debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. So whenever the company incurs a loss, capital reduction will be debited, and when it is a profit, capital reduction will be credited. So we'll have to remember one thing, that if there is a profit or a loss, what we will do, if there is a profit or a loss, then what we will do, we will give the effect to capital reduction account. If it's a profit, we will credit capital reduction. If it's a loss, we will debit capital reduction. Now what we will do, now we will understand some of the very basics in this chapter. See, in this chapter you will have journal entries. So journal entries के लिए आपको कुछ basic समझना चाहिए. And in this chapter, what we will be preparing, we will have to prepare journal entries, ledger account, and the balance sheet. So here, what we will do, let us start with the first thing. What you will have to understand is, we know, see, balance sheet is a statement. We all know that balance sheet is a statement. But what we assume here for the asset, we will have to assume that asset is a debit balance and liability is a credit balance. So you will have to remember this. Asset is a debit balance, liability is a credit balance. And when asset increases, we further give a debit effect. And if when asset decreases, we give a credit effect. Asset increase होगा तो डेबिट, asset decrease होगा तो क्रेडिट. Same way, when liability increases, हम क्या करते हैं, liability means credit balance. See, initially asset मतलब debit balance,
liability means credit balance. And when you see that the asset is increasing, asset increase matlab we will have to do debit, and when asset decreases we give the opposite effect of debit, that is credit. Same way liability is a credit balance, liability increase मतलब further credit करेंगे, but when liability decreases what we will do, we will give a opposite effect, that is debit. ये हमें समझना बहुत important है. For what? This we will have to understand for doing the journal entries. So very important. So this we have already understood, that we know balance sheet is a statement. Still to just again to summarize, asset is a debit balance, liability is a credit balance. When asset increases हम डेबिट करते हैं, when asset कम होता है तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट. सेम वे when liability increases, liability is a credit balance. when liability increases मतलब creditors है 1 लाख का, अब creditors 1,50,000 हो गया, तो फर्दर हमें क्या कर, liability is a credit balance. सो क्रेडिट बैलेंस जब इंक्रीज होगा तो भी क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट करेंगे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस चैप्टर, विच इज टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज. Let us see the first journal entry. The first journal entry is for reduction in the value of equity share capital. Now face value, here something is written, face value changed. So now in the company, who are the owners? The owners are the equity shareholders. So when the company is making losses from few years, then if the company is incurring losses, then the company in the future may shut down. कंपनी बंद करना पड़ सकता है. तो अगर कंपनी बंद होगा, if the company shuts down, then there may be a chance that equity shareholders are not able to get anything, because equity shareholders have a residual claim, have a last claim to get their capital. So यहाँ पे this everyone is making a sacrifice. So even equity share capital, equity shareholders, they say कि हमारा share 10 rupees का है, but we are ready to मेक. यहाँ पे देखो फेस वैल्यू चेंज का क्या मीनिंग है. व्हाट इज द फेस वैल्यू मी ऑफ अ शेयर मीन्स, फेस वैल्यू मीन्स द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ द शेयर. Face value means the printed value of the share. Now if the share was of 10 rupees each, now the equity shareholders, they agree that they are ready to change the face value of their share. They are ready to accept a new share of 5 rupees. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड शेयर कैंसल हो रहा है. द ओल्ड शेयर ऑफ 10 rupees इज गेटिंग कैंसल्ड बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सेइंग कि हमारे 10 rupees के शेयर के बदले में हम 5 rupees का शेयर लेने के लिए रेडी है. तो न्यू शेयर क्रिएट होगा 5 rupees का, और ओल्ड शेयर जो है वो कैंसल हो जाएगा. ना इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. जब लाइबिलिटी कम होता, लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, और लाइबिलिटी when it reduces कम होता है, decreases हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड शेयर कम हो जाएगा.
सपोज 10 रुपीज का और नया शेयर क्रिएट हो जाएगा, तो व्हेन लाइबिलिटी इज गेटिंग क्रिएटेड इज गेटिंग इंक्रीज, हम क्रेडिट करते, तो ओल्ड शेयर कैंसल हो रहे, कैंसल होगा तो डेबिट, और नया शेयर क्रिएट हो रहा है तो क्रेडिट। और एक चीज बताओ, हियर 10 रुपीज का शेयर के बदले में इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टेकिंग अ शेयर ऑफ 5 रुपीज, तो कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? तो जहां पे कंपनी अगर बंद होगा, तो जहां पे एक एक इक्विटी शेयर होल्डर को 10 रुपीज पे करना पड़ सकता था, लेकिन अभी शेयर का वैल्यू कम होगा तो कम पैसा पे करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जब कंपनी सी बिजनेस इज स्टिल सेपरेट, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जहाँ पे 10 रुपीज देना पड़ता था, बिकॉज नाउ देयर फेस वैल्यू इज गेटिंग reduced, चेंज, अब हम उनको 10 के बदले में सिर्फ 5 रुपया ही देंगे, बिकॉज वो लोग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, दे आर रेडी टू reduce their claim, तो कंपनी को कम पैसा पे करना पड़ेगा। दे आर सेइंग दैट दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस, मेक अ सैक्रिफाइस, जहाँ पे उनका 10 रुपए का शेयर है वहां पे वो लोग 5 रुपया लेने के लिए रेडी है। यस, इट इज अ प्रॉफिट टू द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लॉस है, बट हम इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। वी विल हियर सी, we always, when we pass journal entry, we think from the point of view of the कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कंपनी को इट इज अ प्रॉफिट और इट इज अ लॉस। दिस इज द जर्नल एंट्री। क्या हो रहा है? ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपीज का था वो कम हो गया, लाइबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं, और बदले में नया शेयर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में 6 रुपीज का शेयर बोला है, द न्यू शेयर विच इज गेटिंग क्रिएटेड इज ऑफ 6 रुपीज, मतलब जहाँ पे ओल्ड शेयर 10 रुपीज का था, नया शेयर विच इज गेटिंग क्रिएटेड इज ऑफ 6 रुपीज, तो कंपनी को अभी 10 रुपए के बदले में सिर्फ 6 रुपए ही पे करना है, तो कंपनी को 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, हम कौन से अकाउंट को इफेक्ट देंगे? कैपिटल रिडक्शन को। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द डेबिट, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द क्रेडिट। सो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन इज इन द क्रेडिट, which is signifying that the company is making a profit. Capital reduction is a nominal account, loss होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। यहाँ पे 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 रुपीज का जो शेयर था वो कैंसल होके नया शेयर 6 रुपीज का बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। मीन्स अभी अगर कंपनी will try to pay the equity shareholder 10 रुपीज के बदले में सिर्फ 6 रुपीज ही पे करना है, तो कंपनी को 4 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट हियर? दिस इज फेस वैल्यू चेंज्ड, जहां पे 10 रुपीज का फेस वैल्यू का जो शेयर था उसको चेंज करके न्यू शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर 6 रुपीज, 10 रुपीज का शेयर गॉट कैंसल्ड एंड न्यू शेयर ऑफ 6 रुपीज हैज बीन क्रिएटेड। दिस इज फेस वैल्यू चेंज्ड। Now, if any doubt, if you do not understand any entry, just let me know. तो यहाँ पे देखो, ये एंट्री होने के बाद now we come to our next entry again for reduction in the value of equity share capital. But here what is the difference? फेस वैल्यू अनचेंज्ड मीन्स जो 10 रुपीज का फेस वैल्यू का जो शेयर है वो शेयर का फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, मीन्स हियर न्यू शेयर इज नॉट गेटिंग क्रिएटेड,
यहाँ पे जो 10 रुपीज का शेयर है वो 10 रुपीज का शेयर ही रहने वाला है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स दे से दैट हमारा 10 रुपीज का शेयर है, तो हम लोग रेडी है कि हम लोग मानते हैं कि हमने सिर्फ 6 रुपीज ही पे किया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव paid the full amount of the share. See now यू मस्ट हैव सीन कि अगर एक शेयर 10 रुपीज का है तो कंपनी वो शेयर का जो प्राइस है, फेस वैल्यू है, प्रिंटेड वैल्यू है, उसको एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट मनी में, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी वैसे कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपीज का है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मीनिंग क्या है कि एवरी शेयर होल्डर हैज पेड 10 रुपीज ईच फॉर पर शेयर। See, every shareholder has paid rupees 10 for each equity share. Now the equity shareholders are ready to make a sacrifice. वो लोग बोलते हैं कि हमने तो 10 रुपीज पे किया है, बट हम लोग मानने के लिए रेडी है कि हमने सिर्फ 6 रुपया पे किया। मीन्स यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर ने 10 रुपीज पे किया अपने शेयर के लिए कंपनी को। नाउ दे आर रेडी टू अज्यूम दैट दे हैव पेड ओनली 6 रुपीज। यहाँ पे क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन से? पहले वाले क्वेश्चन, पहला वाला जर्नल एंट्री में 10 रुपीज का शेयर कैंसल होके नया शेयर 6 रुपीज का क्रिएट हुआ था, बट यहाँ पे वही 10 रुपीज का शेयर इन द सेकेंड एंट्री, द शेयर इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड, इट इज द सेम 10 रुपीज शेयर, बट द शेयर होल्डर्स आर रेडी टू अज्यूम दैट दे हैव पेड 10 रुपीज का शेयर का, दे हैव पेड ओनली 6 रुपीज ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का वो लोग ने सिर्फ 6 रुपीज पे किया है, तो कंपनी के पास कंपनी को यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। जहाँ पे शेयर होल्डर्स ने 10 रुपीज पे किया था वहाँ पे दे आर रेडी टू अज्यूम दैट दे हैव ओनली पेड 6 रुपीज। मतलब फ्यूचर में ये इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनी 4 रुपीज दोबारा कलेक्ट कर सकता है। whenever the company requires fund, whenever the company requires money, the company can call further 4 rupees again from the shareholders। अभी तक तो ये रिडक्शन में कंपनी को डबल फायदा है। एक तो 10 रुपीज का शेयर है, वो शेयर अभी 6 रुपीज ही पेड अप वैल्यू 6 रुपीज ही है, दे आर रेडी टू अज्यूम, मतलब 4 रुपीज का फायदा हुआ। और फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकता है, ये 4 रुपीज अगेन इक्विटी शेयर होल्डर से कलेक्ट कर सकता है। वेन एवर कंपनी इज इन नीड फॉर लिक्विड कैश, they may call these 4 rupees from the shareholders, that they may collect 4 rupees again। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या हो रहा है, 10 रुपीज का शेयर है बट कोई शेयर कैंसल नहीं हो रहा है, सेम शेयर है। अभी इक्विटी शेयर होल्डर अज्यूम दैट दे हैव पेड ओनली 6 रुपीज, तो 4 रुपीज का यहाँ पे कंपनी को फायदा हो रहा है। इफ इट इज अ प्रॉफिट, कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द क्रेडिट। एंड क्या कैंसल हो रहा है, 4 रुपीज का वैल्यू, जो शेयर 10 रुपीज का था, अब शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि वो 6 रुपीज का हो गया, तो 4 रुपीज वैल्यू का कैपिटल कम हो रहा है, बट देयर इज नो न्यू शेयर, ओल्ड शेयर ही है, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट कम हो रहा है। तो व्हाट इज द एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल। सी यहाँ पे ओल्ड शेयर न्यू शेयर ऐसा कोई भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे 10 रुपीज का शेयर था, अभी 6 रुपीज का हो गया, तो कितना फायदा हुआ कंपनी को, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज। 10 रुपीज शेयर हैज नाउ रिड्यूस टू 6 रुपीज, तो कितने का फायदा हुआ, 4 रुपीज का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। सो कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द क्रेडिट
and equity share capital will be in the debit because equity share capital is a liability क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करते हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का 6 रुपीज हो गया तो कम हो गया 10 से 6 और लाइबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, कम होता है तो डेबिट करते हैं एंड ज़्यादा होता है तो क्रेडिट करते। सो गॉट दिस एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हो गया 4 रुपीज़ का, टू कैपिटल रिडक्शन इन द क्रेडिट। सी यहाँ पे देयर इज नो ओल्ड शेयर न्यू शेयर का एंट्री, ओनली प्रॉफिट का एंट्री पास करते हैं। ओनली द इफेक्ट फॉर प्रॉफिट हैज टू बी गिवन। नाउ let us come to the next journal entry for reduction in the value of preference shares. Now again preference shareholders are also ready to make a sacrifice. उनका 100 रुपीज का शेयर है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नया शेयर, अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि हमारा जो 100 रुपीज का शेयर है उसके बदले में हम 80 रुपीज का शेयर लेने के लिए रेडी है। नाउ टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 100 रुपीज का शेयर है एंड फॉर दैट 100 रुपीज शेयर दे आर रेडी टू एक्सेप्ट 80 रुपीज शेयर। बोलते हैं कि हमारा 100 रुपीज के शेयर के बदले में हम 80 रुपीज का शेयर लेने के लिए रेडी है। तो इससे क्या हो जाएगा, जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी बंद हुआ तो 100 रुपीज पे करना चाहिए था, अभी यहाँ पे what the company is trying to do, they are trying to reduce their claims, they are trying to reduce their losses। तो ताकि कंपनी क्या करने की ट्राई करती, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सारे स्टेक होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, एवरीवन ट्राई टू मेक अ सैक्रिफाइस कि जहाँ पे हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, हम उससे कम पैसा लेने के लिए रेडी है। ऑल ऑफ देम आर मेकिंग अ सैक्रिफाइस, बट वाई? अगर ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर कंपनी बंद हुआ तो शायद कुछ भी नहीं मिले। तो इस मतलब कुछ नहीं से इट इज इंस्टेड ऑफ गेटिंग नथिंग we are ready to accept something, मतलब something is better than nothing। You all must have heard this phrase, something is better than nothing, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे कुछ तो मिले। they are ready, they are making some sacrifice so that at least उनको, ताकि कंपनी के जितने भी लॉसेस है उसको राइट ऑफ कर सके। So for reduction in the preference share capital, what is the entry? Old preference share जो है वो 100 रुपीज का है, न्यू प्रेफरेंस शेयर जो है वो 60 रुपीज का है। तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ, कैन एनीवन टेल मी? जहाँ पे पहले 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर था, जहाँ पे पहले 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर था, अब वो 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर के बदले में 60 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर ले रहे। 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर के बदले में 60 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं। तो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को हम 100 के शेयर के बदले में, उनके 100 के शेयर के बदले में 60 रुपीज का नया शेयर दे रहे। तो लाइबिलिटी कम हुआ, 100 से 60 हो गया, तो इट इज अ प्रॉफिट। सी व्हेन लाइबिलिटी रिड्यूसेस इट इज अ प्रॉफिट ना, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो यहाँ पे 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो क्रेडिट में बताया
Next, even the debenture holders are ready to make a sacrifice. Debenture capital maybe they are also ready to make a sacrifice. So same way, old debenture is again a liability. Liability कम होगा, liability यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो 100 रुपीज का डिबेंचर है वो कम हो गया, कैंसल हो गया, तो इट विल कम इन द डेबिट. बदले में न्यू डिबेंचर्स क्रिएट हो गया, तो दैट न्यू डिबेंचर लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो हम क्रेडिट में बताते, लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट में बताते. और इवन डिबेंचर होल्डर्स आर मेकिंग अ सैक्रिफाइस, जहाँ पे 100 रुपीज का डिबेंचर, ओल्ड डिबेंचर कैंसल हो गया और बदले में नया डिबेंचर क्रिएट हुआ 60 रुपीज का, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को जहाँ पे 100 रुपीज पे करना था, हम वहाँ पे ओनली 60 रुपीज का नया डिबेंचर उनको दे रहे, तो इट इज अगेन अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज. इट इज अगेन अ प्रॉफिट ऑफ 40 rupees. So now let us go to the next journal entry. For payment of creditors rupees 1 lakh at a discount of rupees 500, we are paying our creditors. हम क्या कर रहे, क्रेडिटर्स को पे करने वाले. टेल मी, जब क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Tell me, when we will pay our creditors, creditors is a liability, creditors को पे करेंगे तो what will happen, liability will increase और liability will decrease. क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? What will happen, liability will decrease. हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे तो हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा. अब क्रेडिटर्स 1 लाख का है, क्रेडिटर्स इज ऑफ 1 लाख, क्रेडिटर्स इज ऑफ 1 लाख एंड वी आर गोइंग टू pay them at a discount of 500. तो क्रेडिट लाइबिलिटी से डिस्काउंट मिला, मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? हम हमारे क्रेडिटर्स को 1 लाख के बदले में 1 लाख पे करना था, बट दे आर गिविंग अस अ डिस्काउंट ऑफ 500. सो इट इज अ प्रॉफिट ना, इट इज अ इनकम. हमें कम पैसा देंगे हम क्रेडिटर्स को, तो 500 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट मतलब क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा. और जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल गो आउट? व्हेन वी विल पे आवर क्रेडिटर्स, व्हाट विल गो आउट? व्हेन यू पे एनीवन, व्हाट गोस आउट? मनी गोस आउट. जब हम किसी को भी पे करते तो व्हाट गोस आउट? मनी गोस आउट, कैश गोस आउट. तो असेट है, पे करेंगे, कैश है, पे करेंगे तो कम होगा. कैश इज असेट, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं. और लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, बट पे करेंगे तो कम होगा, तो डेबिट में आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस पर कम हो रहा है तो डेबिट में लिखा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. एंड टू कैश बैंक, कितना पैसा बाहर जा रहा है? 1 लाख में 500 का डिस्काउंट मिला तो 99,500 बाहर जा रहा है. एंड व्हाट इज हैपनिंग, प्रॉफिट हो रहा है, तो टू कैपिटल रिडक्शन. सी, कैपिटल रिडक्शन विल कम ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस. प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. इन दो सिचुएशन में ही कैपिटल रिडक्शन विल कम, अदरवाइज कैपिटल रिडक्शन विल नॉट कम. फिर हमें असेट और लाइबिलिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखना है. लाइबिलिटी क्रेडिट, असेट डेबिट. असेट ज्यादा हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो
कम हुआ तो क्रेडिट, यहाँ पे कैश हमने पे किया, असेट कम हुआ तो क्रेडिट में है। सेम वे लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, ज्यादा हुआ तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यहाँ पे क्रेडिटर्स कम हो गया तो हमने डेबिट में बताया, क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट entry for arrears of cumulative preference dividend paid. Now firstly, what is a, वो आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सुना है? हैव यू ऑल हर्ड अबाउट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, cumulative preference shares are those preference shares whose dividend get accumulated. मतलब इसका मीनिंग क्या है? See, everyone knows that डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी। तो कंपनी डिविडेंड कभी पे कर सकती है, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड पे करेगी, पर नहीं किया तो भी किसी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कंपनी को, बिकॉज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। इट इज कंपनीज डिसीजन डिविडेंड पे करना है कि नहीं पे करना है। तो there is one type of preference shares known as cumulative preference shares, जिनके साथ क्या होता है कि अगर करंट ईयर में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया, सपोज अब देखो इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये वो कंपनी इसमें होता है हुआ इनकरिंग लॉसेस फ्रॉम फ्यू इयर्स। अब लॉस होगा तो डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे? तो फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं पे किया, सेकेंड ईयर में भी लॉस हुआ तो फिर भी डिविडेंड नहीं दिया, तो थर्ड ईयर में क्या कर सकते हैं? जो पहले 2 साल previous 2 years the company has not paid dividend, तो जब कंपनी डिविडेंड पे करने का डिसाइड करती है तो these cumulative preference shares have the right कि उनको जो साल में डिविडेंड नहीं मिला है वो डिविडेंड भी कंपनी चाहे तो दे सकता है। मीन्स अगेन दिस इज नॉट कंपल्सरी। इफ द कंपनी विशेस, if the company wish to pay the dividend, they may pay even for the previous years when the company has not paid the dividend. So the cumulative preference shareholders have the right they for to get the dividend even for those years when the company had not paid the dividend. That dividend gets accumulated, जमा होते जाता है। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो उनका डिविडेंड क्या होता है? जमा होने लग जाता है विद द कंपनी। सो दे आर लाइबल कि उनको चाहिए तो जिन साल में डिविडेंड नहीं दिया, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो साल का भी डिविडेंड दे सकती है जिन साल का डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। That is cumulative preference shares. They have this feature कि उनका डिविडेंड जो है नहीं पे किया तो जमा होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है। So if you want me to explain this payment of creditors again, so देखो creditors को पे कर दिया, creditors is a liability, पे करेंगे तो कम होगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, बट पे करेंगे तो कम होगा, लाइबिलिटी कम होता है तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में बताते हैं। और पे करेंगे क्रेडिटर्स को तो व्हाट विल गो आउट? कैश विल गो आउट। लेकिन यहाँ पे दे हैव टोल्ड कि वी आर गोइंग टू गिव अ डिस्काउंट टू द क्रेडिटर्स फॉर 500, मतलब 500 का डिस्काउंट मिला तो सिर्फ 1 लाख माइनस 500 सिर्फ 99,500 पे किया तो क्या हो गया? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 500। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, वी विल हैव टू गिव इफेक्ट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो यहाँ पे
क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है, कैपिटल रिडक्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन विल कम इन द डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन विल कम इन द क्रेडिट. सो 500 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिडक्शन इज इन द क्रेडिट. दिस इज द एंट्री. 1 लाख का क्रेडिटर कैंसल हो गया एंड वी हैव मेड द पेमेंट ऑफ, तो कैश इज गोइंग आउट टू कैश बैंक 99,500 एंड 500 का प्रॉफिट हो गया तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. It has 500 in the credit signifying profit. Now let us come to the arrears. मतलब क्या, previous years में cumulative preference dividend was not paid, so वो outstanding हो गया था. Outstanding means arrears, वो arrears में था, it was not paid, it was outstanding. Now they say for arrears of cumulative preference dividend paid, dividend pay किया, तो बताओ मुझे डिविडेंड पे करना, इज इट कंपल्सरी टू पे द डिविडेंड, इज इट कंपल्सरी टू पे द डिविडेंड? डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी, स्टिल कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? डिविडेंड तो पे करना कंपल्सरी नहीं है, बट फिर भी कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो इट इज अ लॉस. लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन किधर आता है? लॉस रहता है तो कैपिटल रिडक्शन किधर आता है? डेबिट या क्रेडिट? यस, डेबिट. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड पे करेंगे तो व्हाट विल गो? डिविडेंड पे किया तो क्या बाहर जाएगा? डिविडेंड पे करेंगे, मनी, कैश. So the entry is what? Capital reduction account debit. क्योंकि लॉस हो गया है तो कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द डेबिट. एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट टू कैश बैंक. So this is the entry for arrears of cumulative preference dividend paid. Creditors में भी क्या हुआ? Creditors क्या था? Liability था. Creditors liability मतलब credit balance, but पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम होगा, तो क्रेडिटर्स डेबिट में है, पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा? कैश बाहर जाएगा. बट 1 लाख के बदले में 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वी विल पे ओनली 99,500. और प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिडक्शन आएगा. प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द क्रेडिट. That is the entry for payment of creditors. Now let us come to the next entry. For payment of creditors, rupees 1 lakh. Now tell me, creditor is a asset or a liability? Creditor क्या है? asset है या liability है? Creditor is a asset or a liability? Yes, correct. It is a liability. Liability मतलब credit balance, correct? Liability मतलब credit balance. अब मुझे बताओ, हम liability को पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा. लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, बट कम होता है तो हम डेबिट करते हैं, करेक्ट? लाइबिलिटी कम होता है तो वी डेबिट इट, तो क्रेडिटर्स विल कम इन द डेबिट बिकॉज हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को, एंड क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, बट पे करेंगे तो इट विल कम होगा, तो क्रेडिटर्स विल कम इन द डेबिट. नाउ टेल मी, पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा? पे करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल गो आउट? कैश विल गो आउट, करेक्ट? सो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, बिकॉज जिसको हमें लाइबिलिटी पे तो करना ही है,
हमने जो उधार लिया है, क्रेडिट लिया है, that only we are paying. So here there is no situation of profit loss. So capital reduction आएगा ही नहीं. Capital reduction सिर्फ profit या loss में आता है. So this is the entry. Creditors account debit to cash bank. यहाँ पे there is no situation for profit or loss. मतलब जितना हमने व्हाट यू से जितना हमने लाइबिलिटी लिया क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया. नो प्रॉफिट नो लॉस. इज दिस एंट्री क्लियर? क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, कम हो रहा है तो डेबिट में है, एंड पे करते व्हाट गोस आउट? कैश बैंक. मनी गोस आउट. इसके बाद नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंट्री, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 4 years. मतलब from past 4 years we have not paid the dividend, so accumulated dividend for 4 years is 2 lakhs. accumulated dividend for accumulated मतलब समझ में आता है ना, जो डिविडेंड जमा हो गया है 4 साल से, बिकॉज द कंपनी वॉज फेसिंग लॉसेस, सो डिविडेंड नहीं दिया, so it is 2 lakhs. The dividend what has got accumulated, जो जमा हुआ है डिविडेंड 4 साल से. देखो मैंने तुम लोग को बताया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है, अगर डिविडेंड नहीं दिया तो डिविडेंड जमा होते जाता है. फर्स्ट ईयर में नहीं दिया तो डिविडेंड विल गेट एक्यूमुलेटेड, सेकेंड ईयर में भी नहीं दिया तो और जमा होगा, थर्ड ईयर में भी नहीं दिया तो जो भी जमा होगा, फोर्थ ईयर में भी नहीं दिया, तो सारा डिविडेंड जमा होके 2 लाख रुपीज पे करना है. Cumulative preference dividend of 4 years is 2 lakh. It was decided to pay only the half amount immediately, remaining waived off. अब तुम लोग पूछोगे what does waived off means? Waived off to means to sacrifice, to let go, नहीं देना, भूल जाना. waived off मतलब क्या? to not to sacrifice, to give away, to भूल जाना. तो बोलते हैं कि 2 लाख का डिविडेंड है, बट आधा अमाउंट इमीडिएटली पे करेंगे. नाउ टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड जो जमा हो गया, इट इज 2 लाख, एंड it was decided to pay only half of the amount immediately, remaining being waived off. So I am getting the answer that many are saying it is a profit, but tell me, dividend pay karna, is it compulsory? Is it compulsory to pay the dividend? No. तो ये भी क्यों पे किया, आधा भी क्यों पे किया? जब पे करना कंपल्सरी ही नहीं है तो कंपनी कुड हैव नॉट पेड एनीथिंग ना. सो जितना पे किया उतना लॉस. क्यों? बिकॉज डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी. जितना हम पे करते हैं उतना हमारे लिए एक्सपेंस है. अगर हम ये भी देखो, अगर डिविडेंड नहीं भी पे किया तो भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता. नो वन कैन क्वेश्चन द कंपनी क्यों नहीं दिया, बिकॉज वैसे भी डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी. इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी होता है, पर डिविडेंड पे करना कंपल्सरी नहीं है. तो जितना पे किया उतना लॉस है. लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन. लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन किधर आएगा? डेबिट या क्रेडिट? Where will capital reduction come if it's a loss? It will come in the debit. So debit में capital reduction, और पे किया तो what will go out? Cash will go out. 1 lakh आधा ना, 2 lakh का half. So the entry is capital reduction account debit 1 lakh to cash bank account. Is it clear? हमने क्या किया, जितना डिविडेंड पे किया उतना लॉस है, बिकॉज डिविडेंड पे करना इज नॉट कंपल्सरी. हमने नहीं, डिविडेंड पे करना कंपल्सरी ही नहीं था, फिर भी पे किया, इसलिए हमारे लिए इट इज अ लॉस.
यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, ओके। ये जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर इट इज अ प्रॉफिट, एग्जाम में भी आप वही सोच के कर देते हो और इसका एंट्री रॉन्ग हो जाता है, फिर इट इज अ लॉस। ध्यान में रखना, डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, तो जितना पे किया उतना लॉस है। नाउ अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ rupees 1,50,000 sold for 1 lakh. Now tell me, is it a profit or a loss? This asset is unrecorded, means is unrecorded asset means what? That in this asset is not recorded in the balance sheet. Unrecorded asset is an asset which is not disclosed in the balance sheet. So हमने 1,50,000 का अनरिकॉर्डेड असेट को 1 लाख में सेल किया, मतलब ये 1,50,000 का तो कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं है। वो असेट को हमने, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसको हम जितने में सेल करते उतना पूरा का पूरा प्रॉफिट होना चाहिए ना। 1,50,000 का अनरिकॉर्डेड असेट जिसको हमने 1 लाख में सेल किया, बिकॉज इट इज अनरिकॉर्डेड असेट, इसको कौन से अमाउंट से प्रॉफिट लॉस चेक करना, ऐसा कोई अमाउंट ही नहीं है। ये असेट का तो कोई हमने ये असेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मतलब हमारे बैलेंस शीट में ये असेट है ही नहीं, तो इसको हमने 1 लाख में सेल किया, तो ये पूरा 1 लाख हमारे लिए प्रॉफिट है। मनी इज कमिंग इन, तो कैश अब सेल करेंगे तो कैश विल कम इन, करेक्ट। व्हेन वी विल सेल समथिंग मनी विल कम इन, सो डेबिट में कैश आएगा एंड प्रॉफिट हो रहा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने में सेल किया असेट को, 1 लाख में, तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द क्रेडिट। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द क्रेडिट। गेटिंग दिस एंट्री unrecorded asset. Unrecorded means this asset is not recorded in the balance sheet. So इसका ये 1,50,000 का था, बट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो जितने में सेल किया पूरा हमारे लिए प्रॉफिट है। जितने में सेल किया पूरा हमारे लिए प्रॉफिट है, तो 1 लाख इज अ प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Next one, cumulative preference dividend of 4 years rupees 2 lakhs. 4 year का cumulative preference share is 2 lakh. It was decided to pay only the half amount by issue of equity shares of rupees 10 each and remaining being waived off. टेल मी, यहाँ पे अभी बताओ 2 lakhs का डिविडेंड जमा हो गया है, बट द कंपनी इज रेडी टू पे ओनली हाफ ऑफ द amount by issuing equity shares. Tell me, is it a profit or a loss? Is it a profit or a loss? We are here, the dividend is accumulated dividend is 2 lakhs, we are paying half, yes correct, it is a loss, it is a लॉस। हाफ भी क्यों पे कर रहे हैं, अब पे करते वक्त कैश बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे हम पे करते वक्त डिविडेंड के बदले में इक्विटी शेयर्स दे रहे। लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन विल बी इन द डेबिट, और इक्विटी शेयर्स देंगे तो इक्विटी शेयर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी है ना इक्विटी शेयर। इफ यू आर गिविंग इक्विटी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर इज गेटिंग क्रिएटेड एंड इक्विटी शेयर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। एंट्री क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। और हम नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं। 1 लाख का कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 वी गेट 10,000 इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। इज दिस अंडरस्टूड? So I end the lecture
today. The remaining entries we will do in the next lecture. Thank you very much, everyone.